आज मैं देखने वाला हूँ जयशंकर प्रसाद जी का वीडियो, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ब्रूट इंडिया चैनल पर इसको अपलोड किया गया है, जिसमें 4 अलग अलग जगह पर अलग अलग टॉपिक्स पर जयशंकर प्रसाद जी ने जो है वो फॉरेन मीडिया को तबाह कर दिया है, कहने का मतलब। चलिए वीडियो देख लेते हैं। Issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. No, we did not discuss human rights during this. Let me put it to you this way, so that there's clarity about where we stand on this. Look, people are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which spread it. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situations, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country. जब एक जर्नलिस्ट उनसे पूछता है कि आपका ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है वो क्या व्यू है या फिर जो भी चल रहा है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हम इसके के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो हम अपने यहाँ जो हो रहा है उसको भी सोचेंगे। और उसी टाइम पर जब का ये स्पीच है उसी टाइम पे रिसेंट में सिख कम्युनिटी को लेकर थोड़ा सा यूएस मतलब अमेरिका में कुछ हुआ था, ठीक है। तो वो उसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए ये बोलते हैं कि हम केवल जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट का सवाल है केवल उस पर हम गौर नहीं करते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट में हमारी कम्युनिटी के साथ हो रहा है हम उस पर भी विचार करते हैं और उसको भी देखते हैं, और हमारा व्यू उससे रिलेटेड भी है और उससे भी हम चिंतित हैं जो अमेरिका में हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, especially when they pertain to our community. And there are a number of reports suggesting that Moscow and Delhi are trying to work out some sort of currency exchange for future energy purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might. ये सबसे सैवेज रिप्लाई था। एक जर्नलिस्ट उनसे पूछता है कि आप जो रसिया से आप रशियन एनर्जी, रशियन फ्यूल ये सब कुछ खरीद रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा इसके बारे में हमारा कहना तो बाद में होगा, पहले एक काम करिए, आप यूरोप का कैलकुलेट करिए, यूरोप का देख के आइए। जितना हम पूरे खरीदते हैं मतलब टिकट में खरीदते हैं उतना तो वो आफ्टरनून में खरीद लेता है। तो कहते हैं कि जाके आप यूरोप का कैलकुलेशन करिए, जितना हम खरीद रहे हैं उतना वो केवल एक आफ्टरनून एक दोपहर में खरीद लेता है। तो अगर यूरोप इतना ज़्यादा खरीद रहा है आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप हम पर भाषण दे रहे हैं। तो मतलब सीधा है कि want to think about it. Why not condemn Russia's invasion? Wouldn't this best reflect India's foreign policy goals and international standing? First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. We have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict. We are for dialogue and diplomacy. We are for urgent cessation of violence.
and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. We're also addressing the humanitarian situation. In fact, we have the Ukrainians have been in touch with us for, especially for the supply of medicines. I think a big concern we have, and not just we, I think the world has, is of energy security, of rising prices, of increasing premiums, of limited supplies. So today you have to understand it is a legitimate concern of countries to ensure their energy security. But an equally big worry which is emerging is of food security. अगला क्वेश्चन था रशिया और यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं? तो इंडिया हमेशा से ऐसा कहता रहा है कि हम ना इनके तरफ है ना उनके तरफ है। मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद हो, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सोवियत यूनियन बना, यूएसएसआर और क्या बोलते हैं इसको, ये अमेरिका का संगठन बना, ठीक है। तो इंडिया ना इस पार्ट में था ना और ना ही इस पार्ट में था, ना ही सोवियत यूनियन में था और ना ही अमेरिका के पार्ट में था। तो इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है। तो आज भी इंडिया उसी स्टैंड पे है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी भी तरफ नहीं हैं। जब इंडिया और रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने सीधा कह दिया कि ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, हम दोनों लोगों से कनेक्टेड हैं, हम शांति की भी बात उससे कर रहे हैं और साथ में हम यूक्रेनियन पीपल्स के भी कांटेक्ट में हैं और उन्हें लगातार मेडिकल सप्लाईज और जो भी नीड है उनको पूरा करने की, फुलफिल करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। Russia has more and more aligned with China diplomatically, economically, and militarily. How much are you concerned about their alignment in terms of India's national security? This seems to be my day to get a lot of advice and suggestions from the press, so thank you for joining that. But look, we watch what's happening in the world like any country does, and we draw our conclusions and make our assessments. And believe me, we have a decent sense of what is in our interest and know how to protect it in advance. इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं अब काफ़ी ठीक हो रहे हैं। मतलब जितना कॉन्फ्लिक्ट पहले था अब उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया को भी पता है, चाइना को भी पता है कि इंडिया से लड़ना, इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर ज़्यादा नुकसान। अभी आप समझ के चलिए कि बाइकआउट चाइनीज़ के चक्कर में, दीपावली में कितना ज़्यादा आपने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो चाइना नहीं चाहता है कि वो नुकसान उसके इंडस्ट्रियल एरिया को हो, तो इसलिए चाइना कभी नहीं लड़ने वाला है इंडिया से, इंडिया ये जानता है। और इंडिया की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कनेक्ट में नहीं हैं या क्या है। हमारा अगर सबसे बड़ा कोई इकोनॉमिकल पार्टनर है तो वो चाइना ही है। ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे चाइना से ही आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। हम उनको लोकली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है। ये हमारा खुद का सेल्फ, ये समझ लीजिए कि मेक इन इंडिया समझ लीजिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें समझ लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रिलेशन आपके चाइना के साथ हैं वो अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे और आगे और ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि अब चाइनीज़ पीपल भी जो है वो इंडिया के सपोर्ट में धीरे धीरे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है जयशंकर जी के बारे में अगर बताएं तो जयशंकर जी जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे इंसान। देखो ये फ़ायदा होता है, फिर अगर बात करें उनके जवाबों की तो ये होता है पढ़े लिखे होने का फ़ायदा। फॉरेन मिनिस्ट्री जयशंकर जी के हाथ में है, यह एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने सचिवालय में भी काम किया है और बहुत लंबे समय तक एक्सपीरियंस है ना फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने पहले भी ये बताया है, ये प्रूव किया है कि यह क्या कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हमारे जो कह सकते हैं पॉलिटिशियन हैं जो धीरे धीरे अब मतलब बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही और सपोर्ट करेंगे ऐसा
तो अगर हम ऐसा ही और एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो ऐसे और पढ़े लिखे एजुकेशन से जुड़े हुए हमें और पॉलिटिशियंस दिखेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे।